کیا کہیں گے آج جو 2000 کو یہاں پہ لائے؟ جی بالکل 2000 کو اس پر پہنچا دیا گیا. آپ کو ہم دیتے ہیں 2000 کو. والدین کا کچھ احساس ہو رہا ہے آپ کو؟ بتائیں آپ کی عمر کتنی ہے ویسے؟ یہاں ہے نا. آرام سے ابھی 2 منٹ آ جائے. ارے اوپر بند کریں کیمرہ بند کر کیمرہ بند کیمرہ بند کر گر جائیں گے. کیمرہ بند سیکنڈ پہ آپ ایک منٹ رکھنا. پولیس زیادہ آتی ہے. لفٹ نہیں چلے گی. لفٹ نہیں چلے گی بھائی. آپ لوگ نکل جائیں. ایک منٹ رکنا. جی 2000 آپ پہنچ چکی ہے. اب سیکنڈ فلور پہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ 2000 کا جو ہے وہ یہاں پہ سیکنڈ فلور پہ دائیں سائڈ پہ. ہاں پیچھے السلام علیکم. امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے. جہاں پر سب کو انتظار تھا کہ 2000 کا میڈیکل ہو اور وہ کراچی واپس آئے، وہیں پر اس سے بھی زیادہ انتظار تھا کہ 2000 ایک بار پھر سے اپنے والدین کے آمنے سامنے آئے تو شاید انہیں کوئی ہنٹ دے دے، یہاں پر ان سے اچھے سے ملاقات کر لے. تو آج ان کی بالآخر ملاقات ہو گئی. اس کی تفصیلات اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں. 2000 جو کہ کراچی سے لاہور جا چکی تھی اور کیس اس کی جانب سے یعنی کہ ختم ہو چکا تھا. انہوں نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ اب دوبارہ انہیں عدالت میں پیش نہیں ہونا پڑے گا اور ظہیر اور دو آگے کی زندگی کا سفر طے کریں گے. مگر 2000 کے والد بھی ٹھان چکے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کو واپس لا کے رہیں گے کیونکہ وہ نابالغ ہے اور اپنے لیے ایک اچھا فیصلہ انہوں نے مزید کیس کی کارروائی کو آگے بڑھایا. تو عدالت نے میڈیکل کی ٹیسٹ کی رپورٹ کی بیسس پر آگے فیصلہ کرنے کا حکم دیا تھا. اب آج میڈیکل ٹیسٹ ہو رہا ہے. وہیں پر میڈیکل ٹیسٹ کے دوران کیا ہوا کہ 2000 کے والدین بھی وہاں پر پہنچ چکی تھی اور اس کی چھوٹی بہن بھی وہاں پر موجود تھی. 2000 جب میڈیکل ٹیسٹ کے لیے اندر روم میں گئی تو ان کی والدہ بھی انٹر ہو گئی، جس پر پولیس اور ارد گرد کے جو میڈیکل اسٹاف انہوں نے روکنے کو کوشش کی، لیکن والدہ نہ ہاسپٹل تھا اس لیے انہوں نے زیادہ ان کو نہیں منع کیا اور اندر جانے کی اجازت دے دی. اور جیسے کہ لاسٹ ٹائم عدالت میں وہ پیش ہوئی تھی اور 2000 کے پاس بھی نہیں آنے دیا تھا، وہاں پر سچویشن بہت زیادہ مختلف نہیں. آج والدین بھی موجود ہے، اس کی چھوٹی بہن بھی موجود ہے. اور جب کمرے میں اس کو میڈیکل ٹیسٹ کے لیے لے کر گئے، اندر روم میں نہیں جہاں پر ایگزامینیشن ہونی تھی، لیکن جس ہال میں اس کو بٹھایا گیا ویٹنگ کے لیے، وہاں پر اس کی والدہ موجود تھی. وہ فوراً جو ہی 2000 انٹر ہوئی کمرے میں انٹر ہوگی، وہاں پر ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا. اس کے بعد یہ کہا گیا کہ 2000 کے کچھ ٹیسٹ یہاں پہ کیے جائیں گے چونکہ میڈیکل کے روم میں اور وہ تمام تر ہاسپٹل ہے اور وہاں پر اتنی زیادہ میڈیا کی کوریج ہے کہ ہر کوئی اپنے موبائل فونز اور مختلف قسم کی چیزیں کیمراز وغیرہ لے کر کھڑا ہے. اور ایک ایک میڈیا پرسن یہ سوال پوچھ رہے 2000 والدین سے ملو کہ 2000 ماما کو دیکھا ہے، 2000 آپ ظہیر کے ساتھ کیوں چلی گئی تھی، 2000 واپس آ گئی، 2000 ماں باپ کے پاس جاؤ گی. اس طرح کے مختلف سوال کیے جا رہے ہیں جس پر 2000 کافی کنفیوز بھی تھی اور گھبرائی ہوئی تھی.
उसकी डेफिनेटली रजिस्टर वैसे ही थे, उसके हाथ कांप रहे थे, बॉडी कांप रही थी, जिसकी वजह से शिवरिंग देखकर डॉक्टर ने भी कहा कि बच्ची बहुत घबराई हुई है, उस पर इतना प्रेशर नहीं डाले, हमने उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करना है, उसको बिठाकर ओवरऑल ऑब्जर्वेशन भी करनी है। तो फिर सवाल क्या कि क्या आप उसके डॉक्यूमेंट्स और वालिदैन की बातों को कंसीडर करेंगे, जिस पर डॉक्टर ने कहा डेफिनेटली हम उसके मेडिकल टेस्ट करने के बाद उसकी रिपोर्ट्स के साथ साथ उसकी ओवरऑल एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें दुआ सारा सामने बैठी होगी, उसकी फिजिकल ऑब्जर्वेशन होगी और उसके बाद उसके माँ बाप जो बातें कह रहे हैं उनको भी देखा जाएगा और इसके अलावा उसकी तमाम तर सर्टिफिकेट्स को भी हम कंसीडर करने के बाद ही एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि डॉक्यूमेंट मौजूद है। इन चीजों को हासिल करना कोई भी मुश्किल बात नहीं। हॉस्पिटल में क्या हुआ दुआ सारा और वालिदैन के दरमियान मजीद तफसीलात इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस के साथ साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। बात करें दुआ सारा केस की, जैसे कि आज दुआ सारा को अदालत में पेश किया गया, सबसे अहम बात यह है कि दुआ सारा की टेस्ट की रिपोर्ट क्या है कि बहुत हद तक यही इम्कान है कि इंशाल्लाह, जैसे कि डॉक्टर्स बात कर रहे हैं, यहाँ पर ऐसे नहीं लग रहा आज की डॉक्टर्स किसी दबाव में है, प्रेशर में। जैसे कि पहले जब मेडिकल टेस्ट हुआ था वहां पे पेरेंट्स भी नहीं गए थे, किसी की प्रेजेंस नहीं थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज केस बहुत मुख्तलिफ तरीके से सामने आ रहा है, जहां पर अदालत भी पॉजिटिव रोल प्ले कर रही है, न्यूट्रल तौर पर सामने आ रही है, ये नहीं कि किसी का दबाव है। दूसरी जानब दुआ सारा के साथ आज ना जहीर को ना किसी और मेंबर को देखा गया, सिर्फ और सिर्फ पुलिस के एहलकार थे, वो भी दुआ सारा को बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज की वजह से हाथ पकड़कर अंदर लेकर जा रहे थे या बाहर लेकर आते। फिलहाल दुआ सारा को दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया क्योंकि उसके कुछ मेडिकल के टेस्ट वहां पर होने थे। यहाँ पर एक्सरे कर लिया गया है, उसके जॉस का टेस्ट कर लिया गया है, इसके अलावा जो फिजिकल ऑब्जर्वेशन करनी थी वो जब उधर से वापस आएगी इसी हॉस्पिटल में वहां पर बैठ के की जाएगी और यही मेडिकल स्टाफ जो है उसके रिजल्ट दिखाएगा। दुआ सारा के वालिद भी वहां पर मौजूद है, वालिदा भी मौजूद है और दुआ सारा का अपने वालिदैन के साथ आमना सामना भी हुआ है। दुआ ज़हरा ने आज ग्लासेस लगा रखे हैं, उनके वालिद भी ग्लासेस लगाते हैं, उसके अलावा उसके बगैर कभी नजर नहीं आए। और इतनी दफा दुआ ज़हरा को बिना इसके देखकर उसके वालिद काफी हैरत का भी इजहार करते रहे, तो इस बार दुआ ज़हरा ने अपने वालिद को भी एक छोटी सी उम्मीद दिलाई है। उसके वालिद आज माशाल्लाह मेहदी अली क्लास में बहुत पुरुमीद नजर आ रहे हैं। वहीं पर दुआ ज़हरा के साथ उसकी वालिदा भी मौजूद थी, अपनी छोटी बहन की गई है मेडिकल स्टाफ की जानिब से कि हम आपको तमाम तर डिटेल शेयर करेंगे, आप प्लीज कैमरे को पीछे कर लें, बच्ची बहुत घबराई हुई है, अगर आप उसको इसी तरीके से करते रहेंगे तो हम उसका मेडिकल प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, उसके वैसे रिजल्ट बहुत ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि वालिदैन को भी देख रही है और टेस्ट भी दे रही है और पिछला को प्रेशर भी है। अदालत में दुआ ज़हरा को पेश होना था और इस बात को कंफर्म किया गया था क्योंकि पुलिस पहले ही वहां पर पहुंच चुकी थी और इनको यहाँ लाने की तैयारी भी कर चुकी थी, क्योंकि दुआ ज़हरा के साथ जो इस वक्त वकील है जो उनके वालिद ने हायर कर रखे नासिर जिब्रान, वो केस को बहुत अच्छे से माशाल्लाह हैंडल कर रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि आज रिजल्ट्स पॉजिटिव आएंगे और इंशाल्लाह दुआ ज़हरा के हक में फैसला होगा, यानी कि वो अपने वालिदैन के साथ जाएगी। एक बच्ची जो कि 14 साल की है, जो कि अपना अच्छा बुरा नहीं जानती, कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकती, उसके घर के मामला अगर आपको बताए जाएं तो उनके जो मालिक मकान है उन्होंने भी बताया कि इनके दरमियान काफी बहसों मुबाहिसा होता था। इसके अलावा जो इंटरव्यू करने गई उन्होंने घर की हालत बताई तो वो बच्ची जिस कमरे में मौजूद थी वो पूरे कचरे से भरा पड़ा था, घर में काम करने के लिए कोई मौजूद नहीं था और दुआ ज़हरा जिसको वालिदैन कि काम करने मुश्किल लगते थे वो वहां जाके क्या काम है कि अदालत आज बहुत अच्छा फैसला सुनाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि मेडिकल के टेस्ट हो चुके हैं, दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात भी हो चुकी है। इस मामले के बारे में शहर रोजा का भी बयान आया, वो भी आपके साथ शेयर करते चले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कीमती राय का इजहार भी कीजिएगा कि आपका क्या मौकफ है, आपको क्या लगता है मेडिकल रिपोर्ट क्या आएगी, दुआ ज़हरा किसके साथ जाएगी, आपको सुनाते शहर रोजा का बयान। बात कर रहे हैं तो दुआ ज़हरा भी पंजाब से उसको लेके चल पड़े हैं और कल उसका बोर्ड जो है उसके सामने पेश होगी। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बोर्ड ये बैठा है और जो कि उसके वालिदैन के जो पेपर्स हैं उनके भी चेक करेगा, बच्ची का भी एग्जामिनेशन होगा और बस ये है कि हमें ये देखना है कि किस करवट ये ऊँट बैठेगा, क्योंकि जब वालिदैन के पास इतने डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसूलन तो मेडिकल होना ही नहीं चाहिए था। और हमने अपने इदारे जो है ना, अगर ये बातें सियासतदान करते कि नहीं जी नादरा के पेपर्स की कोई अहमियत नहीं, ये नहीं, ये सिस्टम कराओ, तो सियासतदानों पे तो अब तक इल्ज़ाम लग चुका होता कि ये इदारों को बदनाम कर रहे हैं, इदारों को मलाइन कर रहे हैं। जब नादरा के सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, जब यूनियन काउंसिल की चीज़ें मौजूद हैं, जब पासपोर्ट मौजूद है, तो जब निकाहनामा मौजूद है, जब
90 फॉर्म मौजूद है, बहरहाल जितने भी हो सकते हैं। तो सियासतदान अगर किसी ये करते तो फिर बड़ा ही शोर मच जाता कि ये सब क्या हो रहा है। लेकिन अब क्योंकि मामलात जो हैं वो बहुत ही गंभीर हो चुके हैं, और जब मैंने देखा कि बहुत हसास नौइयत के हो गए और अब हाई कोर्ट के अलावा सुप्रीम कोर्ट पे जाना पड़ेगा, और तो मेरे अल्ताफ़ खोसो जो हैं, जो मेरे लॉयर हैं हमारे साथ जो NGO काम करती है, प्लस उसके जो लॉयर हैं, तो उनके पास सुप्रीम कोर्ट का लाइसेंस नहीं था। तो फिर मैंने बात की जिब्रान नासिर साहब से, जिस दिन हम आज चैनल पे थे, सुबह में हमने सिदरा का प्रोग्राम किया था उसके बाद, और फिर उनके वालिदैन का टाइम करवा के फिर हमारा एक तरीक़ाकार होता है, हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी रखते हैं कि हमने एक डिक्लेरेशन जो है वो साइन कराई कि जी हम आपको जो है वहाँ भेज रहे हैं, और फिर उनको वहाँ भेजा, और अल्लाह का शुक्र है कि अब आगे बढ़ा और आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये आपको डिसाइड करना है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने बहुत जज्बात से इसको लड़ा है और मुझे ऐसे नहीं लड़ना चाहिए, लेकिन मैं तो इंसान हूँ ना, और मैंने ये पहले दिन कहा था कि एक मिनिस्टर जो होती है वो माँ भी होती है, और मैं पूरे अपने सूबे के जो बच्चे हैं और पाकिस्तान के भी जो बच्चे हैं, जो मेरे बच्चे हो सकते हैं, जो मेरे बच्चों की उम्र के हो सकते हैं, तो ये वो मेरे बच्चे हैं और मुझे उनकी इसी तरह फ़िक्र करनी है जैसे वालिदैन ने करनी है। ठीक है, मैं उनकी माँ नहीं हूँ, लेकिन हमारे पास उनकी हिफाजत का ज़िम्मा है, हमें ऐसे क़वानीन